There's a massive farmers' protest planned in Delhi, and farmers, as we speak, are attempting to make their way into Delhi from Noida. I want to cut across to Kumar Kunal for those updates. Kumar, it's over to you. Akshita, just a few minutes ago, the farmers have started their march towards Delhi from the Mahamaya flyover at Noida. Right now, we are standing at Rashtriya Dalit Prerna Sthal, and you can see the police arrangements, the security arrangements right here. They are not, what the top police officials are telling us that they are not going to allow any of the farmers from ahead of this point because they are of view that they are not being allowed to restrict the traffic movement. Even they won't be allowed to go towards Delhi. Although farmers are quite clear that they will go to Delhi, their march is bound to happen towards Delhi since the talks have failed yesterday. Talks with three different authorities, Yamuna Authority, Greater Noida Authority and Noida Authorities have failed yesterday, and that's why they are taking a protest march towards Delhi. I can show you toward the other side of the road, a few farmer leaders can be seen on the road. They are coming towards Delhi. Although the farmers' agitation, the number of farmers are in hundreds, which are moving from Mahamaya flyover towards this Dalit Prerna Sthal. But a massive arrangement can be seen here. I can show you through pictures. My camera person Ajay is going to show you that how police personnel are being deployed. Even the barricades have been placed strategically. The barricades have several layer of barricading has been done here, and none of the vehicles are being allowed beyond this point. See the kind of arrangement. I can show you on the other side as well that how all the police officials are, police personnel are standing in a queue to restrict the movement of the farmers. Whosoever will want to go beyond this point, they won't be allowed. And the top officials have confirmed us that the farmers won't be allowed from this side. And I can show you that none of the vehicles can be seen on this stretch of the road, which is coming from Mahamaya flyover and going towards Delhi. So this is the scenario right now. Even women police officials have been deployed because what we are learning that several of the protesters are also women protesters, and they might create chaos. Kumar, just stay with me. Let me get in also Arvind Ojha, who's at another point of the Delhi-Noida border. Arvind, आप इस समय कहाँ पे हो? क्या वहाँ पे भी किसान मार्च शुरू हो गया? बिल्कुल, इस वक्त मैं महामाया फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ और जो किसान प्रोटेस्टर है वो कुछ दूर आगे बढ़े और उसके बाद जब पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इस तरह से अगर आप देखिए तो सड़कों पर दूर तक आपको जो किसान प्रोटेस्टर है वो बैठे हुए दिखाई देंगे और ये हर हाल में अड़े हुए हैं कि इनको दिल्ली की तरफ जाना है। जबकि जो नोएडा पुलिस है वो यहाँ पर अड़ी हुई है कि वो किसी भी हाल में इनको दिल्ली की तरफ नहीं जाने देंगे। हम कुछ प्रोटेस्टर उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ की तरफ जाना चाहते हैं? हम ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण से आए हैं, वहाँ पे हमारी सुनवाई नहीं हुई है। अब हम दिल्ली के लिए संसद का घेराव करेंगे, दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। तो पुलिस रोकने की कोशिश भी कोई बात नहीं, पुलिस रोकेगी तो पुलिस ज्यादा से ज्यादा 4 डंडा मार लेगी, फिर भी हम जाएंगे। जान से मार देगी, फिर भी हम जाएंगे। डंडा खाते रहेंगे, जाएंगे, अपनी मांगों को पूरा करा करके। ये देखिए आप दूर तक अगर यहाँ पर देखें तो जो किसान प्रोटेस्टर है उनका साफ कहना है कि पुलिस कुछ भी कर ले लेकिन वो हर हाल में जाएंगे। जबकि दूसरे साइड पर अगर आप देखें तो जो पुलिस फोर्स है वो डिप्लॉय है यहाँ पर और वो कोशिश है कि इन सभी को यहाँ से नहीं जाने दिया जाए। बाकायदा जो ट्रैक्टर है वो ट्रैक्टर लेकर भी जो किसान प्रोटेस्टर है वो यहाँ पर आए हुए हैं। जो नोएडा के एडिशनल कमिश्नर हैं नोएडा के वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर अभी क्या स्थिति आगे जाने दें? तो देखिए ये फिलहाल की यहाँ पर स्थिति है। ये फिलहाल ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और अगर देखिए तो जो खुद लाठी डंडों से जो लैस पुलिसकर्मी है उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से खुद ह्यूमन बैरिकेडिंग बना ली है कि कोशिश यही है कि जो प्रोटेस्टर है वो आगे की तरफ नहीं जा पाए। हालांकि कुछ दूर जो प्रोटेस्टर है उन्होंने पुलिस
के जो सिक्योरिटी लेयर था उसको तोड़ा और उसके बाद फिर आगे की तरफ बढ़े और उसके बाद जो प्रोटेस्टर है वो अब इस तरफ बैठ गए हैं और इनकी कोशिश यही है कि किसी भी कीमत पर हर हाल में वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। अक्षिता, और हमको ये भी दिखाइए अरविंद कि क्या क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वहां पे। वी आर हियरिंग दैट द प्रोटेस्टर्स विल नॉट बी अलाउड टू गो बियॉन्ड दैट पॉइंट, विल नॉट बी अलाउड टू एंटर दिल्ली, क्योंकि जो किसान बोल रहे हैं उनको पार्लियामेंट तक, संसद तक मार्च करना है। बिल्कुल, देखिए पार्लियामेंट की तरफ कूच करने के लिए वो कह रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। दिल्ली पुलिस की भी ये कोशिश होगी कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पर खराब न हो और शायद यही वजह कि कल एक मीटिंग हुई थी, बाकायदा ज्वाइंट मीटिंग नोएडा पुलिस और दिल्ली पुलिस की, उसके बाद जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट है उसको लेकर बातचीत हुई। तो देखेंगे आप तो जो वुमेन पुलिस पर्सनल है उसके अलावा बड़ी संख्या में जो ये पुलिसकर्मी है वो तैनात। और ये एक तरीके से देख लीजिए ये जो पूरी सड़क है इसमें जो ह्यूमन बैरिकेटिंग है वो कर दी गई है। उसके अलावा जो नोएडा पुलिस के कमांडोज है वो भी यहाँ पर बड़ी संख्या में तैनात है। और सुबह हमने ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर नोएडा से बात की थी, उनका ये कहना था कि 4000 से ज्यादा पुलिसकर्मी है। कल रात डिटेन भी किया गया था कुछ किसान लीडर्स को। कोशिश बाकायदा ऑन रिकॉर्ड इंडिया टुडे पर नोएडा के ज्वाइंट कमिश्नर ने ये बोला है कि किसी भी कीमत पर दिल्ली में एंटर नहीं करने दिया जाएगा। अभी रणनीति यही है कि जहां प्रोटेस्टर है, एक बार मैं तस्वीरें भी आपको दिखाता चलूं कि चारों तरफ जो किसान प्रोटेस्टर है सड़कों पर और बाकायदा हर तरफ आपको दिखाई देंगे। और फिलहाल जब नोएडा पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो इस तरह से वो सड़कों पर ये पूरी सड़क है ये नोएडा से ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है, दिल्ली की तरफ जोड़ती है। सड़कों पर ही जो ये किसान प्रोटेस्टर है वो बैठ गए हैं और इनका कहना है कि वो हर हाल में दिल्ली जाकर रहेंगे। दिल्ली जाने की जो मांग है उस पर ये जो प्रोटेस्टर है वो अड़े हुए हैं। जबकि दूसरी तरफ जो पुलिस है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और उनकी कोशिश है कि किसी भी कीमत पर जो प्रोटेस्टर है उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। और इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो जो नोएडा पुलिस के अधिकारी हैं, जो किसान लीडर्स हैं, वो यहाँ पर लगातार बात